Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are fine and safe. Today we are going to start lecture number 30 from chapter 15, sampling and sampling distribution. Today our topic is sampling distribution of proportions. If all the elements of the population can be classified into two classes, one containing a particular quality and the other not containing such quality. If X elements out of N elements of the population possess particular quality, then the ratio X divided by N is called population proportion and usually denoted by P. If X elements out of N elements of a sample possess particular quality which we consider for population, then the ratio X divided by N is called sample proportion and denoted by P hat. If we draw all possible samples of same size from given population and compute sample proportion for each sample, then probability distribution prepared on all such possible values of proportion is called sampling distribution of P hat. क्या मतलब है इसका कि प्रोपोर्शन के लिए जब हम लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं एक पार्टी में और उसमें हमने गर्ल्स का प्रोपोर्शन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोपोर्शन जब हम लेंगे तो पॉपुलेशन के लिए वो x डिवाइडेड बाय कैपिटल N के इक्वल होगा और उसको हम p से डिनोट करते हैं, जबकि सैंपल में क्या होगा x डिवाइडेड बाय स्मॉल n और उसको हम किससे डिनोट करेंगे p हैट से. Thus the sampling distribution of p hat is defined as the probability distribution of p where p hat represents sample proportion of every possible sample of fixed size, usually large sample. A sample will be considered large if both NP and NQ are greater than or equal to 5, where Q hat is equal to 1 minus P hat. Q किसके इक्वल होगा? 1 माइनस P के इक्वल होगा, ठीक है. और इसमें क्या बताया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P जो है, जबकि P हैट जो है वो किसको सैम्पल प्रोपोर्शन जो है हर एक पॉसिबल सैम्पल का जो कि फिक्स साइज होगा जिसका, यानी यूजुअली हम इसमें लार्ज साइज ही लेते हैं सैम्पल का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है. और सैम्पल विल बी कंसीडर्ड लार्ज, उस वक़्त लार्ज हम लेंगे, सैम्पल को कंसीडर करेंगे जबकि जब NP और NQ ये ग्रेटर होंगे दोनों या इक्वल होंगे 5 के, ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज of sampling distribution of proportion. The first property regarding mean of the distribution. Mean of the sampling distribution of P, it is equal to population proportion. Symbolically it is written as mu P hat is equal to P, or mu P hat it is equal to expected value of P is equal to P. Expected value of P is the mean of P, ठीक है, वो भी इससे भी शो किया जाता है. The second property regarding variance of the sampling distribution. In case of with replacement, sigma P hat square is equal to PQ divided by N, where Q is equal to 1 minus P. In case of without replacement sampling, sigma square P hat is equal to PQ divided by N into N minus N over N minus 1. N minus N over N minus 1 is the finite population correction factor, ठीक है. विदाउट रिप्लेसमेंट केस में हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं.
अब इसमें म्यू पी जो होगा, म्यू पी मीन जो होगा, वो दोनों सूरतों में, चाहे सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट है या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, उस दोनों में वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल होगा, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर पी हेड जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो है एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर के इक्वल होता है वेरिएंस। तो इसको हम लिखेंगे, एन एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे एन बच जाएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर पी हैट इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय एन के होगा, जबकि क्यू जो है वो 1 माइनस पी के इक्वल है। और विदाउट रिप्लेसमेंट केस में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगा। Third property regarding shape of the sampling distribution. Sampling distribution of P will be approximately normal with above said mean and variance for large size of sample, even though the population is non-normal. Mu p hat is equal to expected value of p and it is equal to expected value of x divided by n. p जो है वो किसके इक्वल हमने पीछे कहा है, x डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। सैम्पलिंग प्रोपोर्शन जो p होता है, जिस p से हम उसको डिनोट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, x डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ओवर n, इसको हम लिख सकते हैं, p की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। अब एक्सपेक्टेशन जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो n कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय n। तो एक्सपेक्टेशन किसके साथ आएगी, वेरिएबल के साथ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। और बाइनोमियल का जो मीन है वो किसके इक्वल होता है, एन पी के इक्वल होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे, एन पी, और ये इंटू 1 बाय एन, ठीक है। तो एन पी डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, एन एन से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू पी इसलिए आता है, ठीक है। कि आपको अब समझ आइए कि p के इक्वल किस लिए आता है, किस तरह आता है। म्यू p हैड जो है ये इसलिए p के इक्वल आ जाता है, ये उसका प्रूफ आपको बता दिया है। सिग्मा स्क्वायर पी हैट इज इक्वल टू, ये क्या है, वेरिएंस ऑफ पी हैट है, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा वेरिएंस ऑफ पी हैट की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय n, ये हम पुट कर देंगे पी हैट की जगह, ठीक है। जब वेरिएंस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n जो है, जो n इस x जो है वो n पे डिवाइड हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएंस से बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ x आपको पता है किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, एन पी क्यू। बाइनोमियल का वेरिएंस जो है वो किसके इक्वल है, एन पी क्यू। एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। ये एक एन जो है वो नीचे, ऊपर वाला एन जो है वो नीचे वाले एक एन से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एन बच जाएगा, तो ऊपर वाला एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय एन। अब आपको पता चला कि वेरिएंस ऑफ पी हैट जो है, या सिग्मा स्क्वायर पी हैट, ये पी क्यू ओवर एन के इक्वल कैसे आता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट इज इक्वल टू सिग्मा पी हैट, ठीक है। सिग्मा पी हैट या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोपोर्शन जो है, ये इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और ये इक्वल होगा पी क्यू अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन, एंड इट इज फर्दर रिटर्न एज अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि क्यू हम कहते हैं इट इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो क्यू की जगह हम 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किस में है, विद रिप्लेसमेंट, जब विद रिप्लेसमेंट केस में, जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट केस में भी म्यू पी हैट जो है वो पी के ही इक्वल होगा, चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों में जो म्यू पी हैट है, मीन जो है वो इक्वल टू प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल होगा, ठीक है। और एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट जो है, इट इज इक्वल टू सिग्मा पी हैट एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन इज द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, और ये जब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होती है तो ये उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई होता है,
when the population proportion P is unknown and both the population and the sample sizes are large, then the sample proportion P obtained from sample data is used in place of population proportion P. लार्ज सैंपल क्या होंगे? लार्ज सैंपल हम किसको कहते हैं? व्हेन n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30, तो तब सैंपल जो है वो लार्ज होगा. Now example 15.6 from your book on page 172. A population consists of 5 members. The marital status of each member is given below, where M and S stands for married and single respectively. ये क्वेश्चन है. Determine the proportion of married members in the population. Select all possible samples of 2 members from this population with replacement and without replacement and compute the proportion of married members in each sample. C part इसका है. Form the sampling distributions of P and compute the mean mu P and the standard deviation sigma P of the sample proportions computed in B 1 and 2. Show that sigma P is equal to under root P into 1 minus P by n, and number 2 sigma P is equal to under root P into 1 minus P by n into n minus n over n minus 1 in with replacement and without replacement case. Now we see the solution of this question. First of all we find P. अब P इसमें हमने देखना है कि मैरिड जो मेंबर्स हैं, अनमैरिड, सिंगल और मैरिड के लिए हमें ये दिया गया है 5 मेंबर्स हैं जिनमें से 2 मैरिड हैं और 3 सिंगल हैं इसमें. ठीक है, तो मैरिड मेंबर्स की जो है हमने प्रोपोर्शन जो है वो लेना है. अब इसमें मैरिड मेंबर्स हैं 2 और टोटल मेंबर्स हैं हमारे पास 5, तो P हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0.4 और 40%. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज P हमने फाइंड कर लिया. P इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई n. x वो होगा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसका हम प्रोपोर्शन लेने जा रहे हैं, और n क्या है? पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन जो है. ठीक है, तो वो होंगे. तो x डिवाइडेड बाई n जो है ये P के इक्वल है, और P हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 और ये 0.4 या 40% के इक्वल होगा. द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक है, फर्स्ट विद रिप्लेसमेंट केस नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू n रेज टू पावर n. अब n जो है वो क्या है? 5 है और साइज 2 के सैंपल्स हमने लेने हैं. ठीक है, तो 5 5 25. नंबर ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट कितने बनेंगे हमारे पास? 25. अब हमने जो है 25 सैंपल्स लेने हैं. अब इसको नंबर दिए गए हैं इन मेंबर्स को, 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए गए हैं, तो हम इसके सैंपल बनाएंगे. किस तरह से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. ठीक है, फिर हम किसके साथ? 2 के साथ बनाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5. फिर 3 के साथ बनाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5. इसी तरह से 4 के साथ हम बनाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 एंड 4 5. फिर 5 के साथ हम बनाएंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5 एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शंस, और प्रोपोर्शन हम फाइंड करेंगे. अब फर्स्ट में देखें 1 में कौन क्या आ रहा है? मैरिड आ रहा है. ठीक है, हमने मैरिड मेंबर्स का प्रोपोर्शन लेना है. तो इसमें 2 नंबर्स हैं 1 1, तो 1 1 यानी दोनों मैरिड हैं इसमें. तो क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 2. प्रोपोर्शन क्या होगा इसका? 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा. अब अगला जो सैंपल है वो है 1 2. ठीक है, 1 2, 1 मैरिड है और 2 में क्या आ रहा है? सिंगल आ रहा है. तो हमने मैरिड का लेना है. टोटल हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आ जाएगा. ठीक है, अगला है 1 3. इसको गौर से देखें आपने किस तरह से सैंपल्स बनाने हैं और किस तरह से प्रोपोर्शन फिर आपने लेने हैं. ठीक है, 1 3 है, 1 में भी मैरिड है और 3 में भी मैरिड है, यानी दोनों मैरिड हैं, और 2 पर्सन हैं, दोनों मैरिड हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू 1.
ठीक है, समझ आ रही है ना, नीचे ये प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, सामने नजर आ रहे हैं। 1-4 नेक्स्ट जो सैंपल है वो है 1-4, ठीक है। 1 के सामने मैरिड है पर्सन और 4 के सामने सिंगल पर्सन है, ठीक है। तो 2 पर्सन है जिसमें एक मैरिड है, तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, जो कि इक्वल टू 0.5 होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो सैंपल है वो है हमारे पास 1-5। 1 के सामने मैरिड है और 5 के सामने सिंगल है, तो हमारे 2 पर्सन्स में से एक मैरिड है, तो हमने मैरिड का प्रोपोर्शन लेना है, तो क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल पर्सन 2 हैं और एक मैरिड है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से 2-1 2 हमारा सिंगल है और 1 जो है ये मैरिड है, तो एक पर्सन मैरिड है 2 में से, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से तमाम प्रोपोर्शन जो हैं वो हमने कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है, समझ आ गई है। अब हमने नेक्स्ट देखना है, इसमें जो सेकंड है कि हमने सैंपल लेने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट नंबर ऑफ सैंपल्स जब हम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, NCN, ठीक है। N कैपिटल N जो है वो आपके पास 5 है और स्मॉल n साइज 2 के आपने सैंपल लेने हैं वो 2 है, ठीक है। तो 5C2 हमारे पास ये आ जाएगा 10, यानी 10 पॉसिबल सैंपल्स जो हैं वो साइज 2 के साथ विदाउट रिप्लेसमेंट केस में हमारे पास बनेंगे। तो हम किस तरह से बनाएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 और फिर उसके बाद 2 के साथ बनेंगे 2 3 2 4, यानी पीछे की तरफ हम नहीं आते, ये तो आपको पता है, अब तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गए होंगे, काफ़ी सारा चैप्टर तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं काफ़ी सारा, तो आपको सैंपल बनाने अब बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम सैंपल लेते हैं तो हम उसमें रेपिटेशन नहीं होती, आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, आप आगे की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड जो आपका नंबर है वो क्या है, 2 है, तो 2 3 2 4 2 5। इसी तरह फिर 3 के साथ बनाएंगे तो क्या होगा 3 4 3 5, फिर 4 के साथ बनेगा तो 4 5 ही आएगा, ठीक है। ये आपके सैंपल बन गए 10 सैंपल। अब आपने प्रोपोर्शन लेना है। अब फर्स्ट में देखें 1 और 2 है, 1 में मैरिड आता है और 2 सिंगल है, तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, आपका जो फर्स्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा इसका वो 0.5, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरे में देखें 1 और 3, 1 पे भी मैरिड है और 3 पे भी मैरिड है, तो दोनों के दोनों मैरिड पर्सन्स हैं इसमें, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1 और 4 में देखें आप, 1 में मैरिड है पर्सन और 4 में क्या है, सिंगल पर्सन है, तो 1 और 4 में तो क्या है, 2 पर्सन हैं आपके पास, उन दोनों में आपके पास 1 मैरिड है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आपका प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल होता है 0.5 के। इसी तरह से आपने 1 5 के लिए, 2 3 के लिए तमाम सैंपल्स के आपने प्रोपोर्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेने हैं। जब प्रोपोर्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोपोर्शन जो है वो हमने फाइंड करनी है, पहले विद रिप्लेसमेंट केस के लिए, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट केस के लिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन जो है उसमें फर्स्ट वाले में देखें आप, विद रिप्लेसमेंट केस में जो है हमारे पास प्रोपोर्शन क्या है, उसमें 0 भी है हमारे पास वैल्यू, फिर उससे बड़ी 0.5 है, फिर उससे बड़ी 1 है, ठीक है। तो 0 0.5 और 1 जो है ये हमारा P आ जाएगा। अगला कॉलम क्या हमने फाइंड करना है, F का कॉलम, ठीक है। अब हमने देखना है कि 0 जो है इन फर्स्ट जो हमारा हमने विद रिप्लेसमेंट केस में जो प्रोपोर्शन ऊपर फाइंड किए हैं फर्स्ट पार्ट में, उसमें देखें हमारे पास 0 जो है वो कितनी दफ़ा उसमें जो है वो लाई कर रहा है, देखें 0 उसमें 9 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 0.5 को हम काउंट करेंगे तो वो हमारे पास 12 टाइम उसमें लाई कर रहा है, और 1 जो है वो 4 टाइम आ रहा है उसमें, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स के इक्वल देखें 25 आ रहा है, और 25 ही विद रिप्लेसमेंट केस में हमारे पास सैंपल हमने बनाए हैं। अब हमने क्या करना है कि P जो कि
है पी हैट हमने लेना है। पी हैट हमारे पास क्या है, 0 है, 0.5 है और 1 है। ठीक है, अगर ये कॉलम ना भी लिखें तो इसमें कोई मसला नहीं है। एफ ऑफ पी हैट नेक्स्ट कॉलम है। एफ ऑफ पी हैट क्या है, इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9 डिवाइडेड बाय 25, 12 डिवाइडेड बाय 25, 4 डिवाइडेड बाय 25। हर फ्रीक्वेंसी एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है तो हर फ्रीक्वेंसी अपने टोटल पे डिवाइड होती है। ठीक है, एफ ऑफ पी हैट आ जाएगा। अब हमारे पास पी हैट का कॉलम भी है और एफ ऑफ पी हैट का कॉलम भी है। ठीक है, हमें कॉलम चाहिए पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट का म्यू पी हैट के लिए। ठीक है, क्योंकि म्यू पी हैट इज इक्वल टू समेशन पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट। ठीक है, तो हम कॉलम फाइंड करेंगे पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट। तो पी हैट का जो कॉलम है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ पी हैट के कॉलम से। यानी पी हैट फर्स्ट क्या है, 0 है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ पी हैट जो है वो 9 डिवाइडेड बाय 25। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0.5 है नेक्स्ट वैल्यू पी हैट की और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ पी हैट है 12 डिवाइडेड बाय 25। उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 25। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ पी हैट है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 25। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा और इसका सम हमारे पास आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 25। इसी तरह से पी स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ पी हैट, हमें सिग्मा स्क्वेयर पी हैट के लिए ये कॉलम चाहिए होगा। पी हैट स्क्वेयर जैसे आप x के लिए, x बार के लिए करते होते थे ना मीन के लिए, उसकी जगह x बार की जगह यहाँ पे क्या आ गया, पी हैट आ गया। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से एक्स बार स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार लेते होते थे, यहाँ पे पी हैट स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ पी हैट आ जाएगा। यानी पी हैट के कॉलम का आप स्क्वेयर लेते जाएंगे और उसको एफ ऑफ पी हैट के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0 का स्क्वेयर तो 0 होगा, ये फर्स्ट वैल्यू तो वैसे भी 0 हो जाएगी। 0.5 का स्क्वेयर लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 25 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 25। इस तरह से 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 25 से, तो 4 डिवाइडेड बाय 25। तो इसका सम हमारे पास आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 25। अब हम देखते हैं कि म्यू पी का क्या फार्मूला है। म्यू पी हैट इज इक्वल टू समेशन पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट के इक्वल है। तो समेशन पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट हमारे पास क्या आया है, 10 डिवाइडेड बाय 25 जो कि इक्वल है 0.4 के। अब देखें आप पीछे हमारे पास हमने जो शुरू में p की वैल्यू जो फाइंड की थी x डिवाइडेड बाय n, वो भी हमारे पास 0.4 40% ही आ रही है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। अब हमने सिग्मा पी हैट फाइंड करना है जो कि इक्वल है समेशन पी हैट स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ पी हैट माइनस म्यू पी हैट होल स्क्वेयर के। अब इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। समेशन पी हैट स्क्वेयर एफ ऑफ पी हैट हमारे पास पीछे ये सम आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 25 के माइनस म्यू पी हैट, ऊपर देखें ये 0.4 आया है हमारे पास, इसका होल स्क्वेयर ले लेंगे तो हमारे पास सिग्मा पी हैट की वैल्यू अंडर रूट लेने के बाद आ गई 0.3464। अब हमने जो दूसरा हमारे पास केस है विदाउट रिप्लेसमेंट केस, उसमें जो सैंपल हमने फाइंड किए और प्रोपोर्शन हमने फाइंड किए। ठीक है, अब हम उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन जो है उसका फाइंड करते हैं। अब उसमें भी हम इसी तरह से उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पी हैट की वैल्यूज जो है उसके जो हमने प्रोपोर्शन फाइंड किए हैं पीछे जो सेकंड केस में विदाउट रिप्लेसमेंट केस में, तो उन 10 सैंपल्स हमारे पास बने थे और उनके प्रोपोर्शन हमने फाइंड किए हैं, उनको हम लिख लेते हैं इसी तरह से। सबसे छोटी वैल्यू 0 है, फिर उससे बड़ी 0.5, उससे बड़ी 1 है, उससे बड़ी वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हम लिख देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी के 0 जो है वो कितनी दफ़ा उसमें रिपीट हो रहा है, 3 टाइम, 0.5 6 टाइम्स, और 1 जो है उसमें ओनली 1 टाइम आ रहा है। तो इस फ्रीक्वेंसी का सम जो है ये देखिए हमारे पास 10 आ रहा है और 10 ही हमारे पास सैंपल बने थे विदाउट रिप्लेसमेंट केस में। ठीक है, तो अब हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एफ ऑफ पी हैट।
अब इसको एफ ऑफ पी हेड का क्या मतलब है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि हर फ्रीक्वेंसी अपने टोटल पे डिवाइड होती है 3 डिवाइडेड बाई 10, 6 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10। अब पी हेड के कॉलम को हम एफ ऑफ पी हेड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बाई 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0.5 को 6 बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 10 से तो हमारे पास 1 बाई 10 आएगा, और इस कॉलम का सम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10। अब हमें वेरिएंस के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें चाहिए पी हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी हैट का कॉलम। ठीक है, तो हम पी हैट का स्क्वायर करते जाएंगे और उसको एफ ऑफ पी हैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और इसका सम हमारे पास आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 10, नो 2.5 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 2.5 डिवाइडेड बाय 10 जो कि इक्वल आ रहा है 0.25 के। अब हम म्यू पी हैट फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है समेशन पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट के, और इसका सम हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 10 जो कि इक्वल टू 0.4 आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो पी हमने पीछे फाइंड किया है वो भी 0.4 है। तो देखें विद रिप्लेसमेंट केस में भी दोनों इक्वल आ रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट केस में भी ये दोनों म्यू पी हैट जो है वो पी के ही इक्वल है। सिग्मा p is equal to अंडर रूट समेशन p हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ p हैट माइनस p म्यू p हैट होल स्क्वायर। ठीक है, अब समेशन p हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ p हैट हमारे पास है 0.25 के इक्वल आया है, माइनस म्यू p हैट जो है 0.4 के इक्वल है, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा p हैट अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास आ रहा है 0.3। अब हमने जो है इनको कंपेयर करना है। विद रिप्लेसमेंट केस में सिग्मा पी जो है ये इक्वल है अंडर रूट, उसने खुद कहा है कि आप शो दैट सिग्मा पी इज इक्वल टू अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस पी इन विद रिप्लेसमेंट केस, यानी पी क्यू ओवर एन के इक्वल होता है ना, तो पी इंटू 1 माइनस पी यानी क्यू की जगह उसने 1 माइनस पी यहाँ पे शो करके बताया है। तो हम इसको हमने प्रूव करना है। p हमारे पास 0.4 है तो 1 माइनस पी क्या होगा, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय n, हमारे पास साइज जो है वो 2 है। ठीक है, अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, और 0.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3464। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट केस में। और ऊपर देखें हमने जो सिग्मा पी उसमें कैलकुलेट किया था ऊपर फर्स्ट केस में जो है, देखें सी पार्ट जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है उसमें हमारा सिग्मा पी किसके इक्वल आया था, 0.3464 के ही इक्वल आया है। तो यहाँ पे ये दोनों हमने इक्वल बता दिए। अब नेक्स्ट हमने जो वेरीफाई करना है वो है सिग्मा पी विदाउट रिप्लेसमेंट केस के अंदर के p इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, ये हमने जो है इसको शो करना है, बताना है। तो अंडर रूट 0.4 हो जाएगा p, और 1 माइनस 0.4 ये 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय 2, और कैपिटल N 5 है माइनस स्मॉल n 2 है तो 5 माइनस 2 और 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 अंडर रूट। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.3 आता है। और देखें ऊपर ऊपर हमारे पास सिग्मा p जो है ये जो सेकंड वो है उसमें देखें 0.3 ही आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 15.7 from your book on page 174. A population consists of 7 numbers 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6. Draw all possible samples of size n is equal to 3 without replacement from this population and find the sample proportion of odd numbers in the samples. Construct the sampling distribution of sample proportion and verify that mu p is equal to
mu p is equal to p and sigma square p is equal to p into 1 minus p by n into n minus n over n minus 1। ठीक है, ये हमने करना है। विदाउट रिप्लेसमेंट केस है और साइज 3 के सैंपल्स हमने बनाने हैं। अब सबसे पहला जो प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने पी फाइंड करना होता है। अब इसमें हमने जो है किसके फाइंड करनी है, प्रोपोर्शन किसके लिए फाइंड करना है हमने, ऑड नंबर का। ठीक है, ऑड नंबर का प्रोपोर्शन हमने करना है। अब इसमें ऑड नंबर कितने हैं, 1 1 3 5। ठीक है, 4 ऑड नंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 6 7 नंबर्स हैं और इसमें कितने हैं, 4 जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो हमारा पी जो हो जाएगा वो 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 डिवाइडेड बाय 7। ये नेक्स्ट पेज पे किया हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आपने जब भी क्वेश्चन करना है पहले ये फाइंड किया करें। ठीक है, ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7 0.5714 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो है नंबर ऑफ सैंपल्स आपने फाइंड करने हैं कि कितने आपने सैंपल्स बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट केस। ठीक है, साइज 3 के आपने बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल टू 7 NCN कैपिटल N जो है वो 7 है और स्मॉल n 3 है, तो 7C3 और ये कॉम्बिनेशन जब हम खोलते हैं तो ये इक्वल आ जाता है 35 के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे, 35। तो 35 सैंपल्स हमने बनाने हैं। अब इसको देखें, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 ये सैंपल बनाने मैंने आपको बताए हुए हैं और ये आपको अच्छी तरह आते होंगे क्योंकि पीछे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट जो हम बनेगा वो क्या होगा, 1 क्या बनेगा, 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। इसी तरह से 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 4 5 1 4 6 1 5 6 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 4 5 1 4 6 1 5 6 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 4 5 2 4 6 2 5 6 to 3 4 5 3 4 6 3 5 6 एंड 4 5 6। इसमें किस तरह से बनते हैं कि पहले जो है वो लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती हैं, फिर दरमियान वाली वैल्यूज चेंज होती हैं, फिर पहले राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं, जैसे 1 1 2 है तो अगले में क्या है 1 1 3 आ गया है, उससे अगले में 1 1 4 आ गया। इसी तरह से आपने 6 नंबर तक है ना तो 6 तक 1 1 6 आपने ले लिया। ठीक है, तो ये पहले राइट हैंड साइड की चेंज हुई, फिर दरमियान की चेंज हुई। देखें 1 2 4 आ गया अब आपके पास। ठीक है, दरमियान वाली चेंज हुई, फिर एंड पे जो है ना हम जो है लेफ्ट हैंड साइड की जो नंबर होगा वो चेंज होगा। ठीक है, उसको चेंज किया। ये देखें आगे 2 3 4 जहाँ यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये हमने करना है इस तरह से। इस तरह से हमने सैंपल लेने हैं या पीछे बना चुके हैं। अब हमने क्या लेना है, ऑड नंबर का प्रोपोर्शन लेना है। अब किस तरह से प्रोपोर्शन पी हैट हमने ये फाइंड करना है और पी हैट का कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें 1 1 2 है पहला सैंपल, तो इसमें टोटल 3 नंबर्स हैं और उनमें 2 जो हैं वो ऑड हैं, तो प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगला सैंपल देखें 1 1 3 है। ठीक है, अब इसमें तीनों के तीनों ऑड नंबर्स हैं तो क्या हो जाएगा, और 3 नंबर्स हैं और तीनों के तीनों ऑड हैं तो क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है 1 1 4, इसमें देखें 2 डिवाइडेड बाय 3। 1 1 5 है, उसमें क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1 1 6 है, इसमें क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3
और इसी तरह से नेक्स्ट जो है 1 2 3, उसमें भी 2 जो है ऑड नंबर हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 3, इस तरह से तमाम सैंपल्स के आपने प्रोपोर्शन ले लेने हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, वो आपने बनाना है। अब पी हैट इसमें देखें, अब वैल्यूज आपने लेनी है, 0 भी इसमें शामिल है, ठीक है, 0 एक है ना नंबर, 0 भी इसमें शामिल है, इसमें 1/3 है उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा 2/3 है, और फिर उससे बड़ा 1 आ रहा है इसमें, ठीक है। अब आपने उसी तरह से फ्रीक्वेंसी लेनी है, 0 को देखना है कितनी दफ़ा इन प्रोपोर्शंस के अंदर लाई कर रहा है, फिर आपने देखना है 1/3 कितनी दफ़ा इसमें आ रहा है, फिर 2/3 आपने देखना है कितनी दफ़ा इसमें आ रहा है, फिर 1 आपने देखना है इसमें कितनी दफ़ा आ रहा है। अब देखें आपने 0 जो है वो 1 टाइम है, 1/3 12 टाइम आ रहा है, 2/3 18 टाइम्स है, और 1 जो है वो 4 टाइम्स इसमें आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, जो सम है वो 35 ही आ रहा है, और सैंपल्स भी हमारे 35 ही बने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट कॉलम हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइंड करना है, एफ ऑफ पी हैट का, हर फ्रीक्वेंसी अपने टोटल पे डिवाइड होगी, और फिर म्यू पी हैट फाइंड करने के लिए हमें कॉलम चाहिए पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट का, और सिग्मा स्क्वेयर पी हैट फाइंड करने के लिए पी हैट स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ पी हैट का कॉलम चाहिए, ठीक है। तो म्यू पी हैट फाइंड कर लेंगे, जो कि म्यू पी हैट जो है पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट का जो कॉलम है वो इक्वल आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 35, जो कि इक्वल आ रहा है 0.5714 के, और पी भी हमारा यही आ रहा है, x डिवाइडेड बाय n जो हमने किया, p हमारे पास 0.5714 ही आ रहा है। अब सिग्मा स्क्वेयर हमने वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर पी हैट फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है समेशन पी हैट स्क्वेयर एफ ऑफ पी हैट माइनस म्यू पी हैट होल स्क्वेयर, ठीक है। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास सिग्मा स्क्वेयर पी हैट की वैल्यू आ रही है 0.05442, ठीक है। अब हमने वेरीफाई करना है इसको, म्यू पी हैट तो हमारा पी के इक्वल ही आ रहा है, जो कि 0.5714 है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, सिग्मा स्क्वेयर पी जो है ये इक्वल हो जाएगा पी इंटू 1 माइनस पी ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1, ठीक है। n माइनस एन, कैपिटल N 7 है, स्मॉल n 3 है, 7 माइनस 3 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, और यहाँ पे p की वैल्यू 0.5714 है, और q 1 माइनस p जो है ये हमारे पास, या q जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.4286 डिवाइडेड बाय स्मॉल n 3 है। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास देखें सिग्मा स्क्वेयर p जो है ऊपर हमारे पास 0.05442 आ रहा था, तो ये भी हमारे पास 0.05442 आ रहा है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। Now, sampling distribution of difference of proportions. Let two independent random samples of sizes n1 and n2 are selected from two respective populations have proportions p1 and p2. Also, let p1 hat be the proportion of all possible samples drawn from the first population, and p2 be the p2 be the proportion of all possible samples drawn from the second population. The all possible differences between the sample proportion p1 hat minus p2 hat will be the random variable, and the probability distribution formed by these differences is called the sampling distribution of p1 hat minus p2 hat. कि दो पॉपुलेशन है हमारे पास, और एक का साइज जो है सैंपल हमने उनसे सिलेक्ट किए, और एक सैंपल जो हमने सिलेक्ट की उसका साइज n1 है, और दूसरी से जो हमने सैंपल सिलेक्ट किए उसका साइज n2 है, और उनके जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, फर्स्ट जो पॉपुलेशन है उसका p1 है और सेकंड पॉपुलेशन का p2 है। इसी तरह से जो सैंपल प्रोपोर्शन है उनके फर्स्ट पॉपुलेशन का जो है वो p1 हैट है, और सेकेंड पॉपुलेशन का जो है वो p2 हैट है, ठीक है। और उनके डिफरेंसेस जो हैं उनको हम p1 हैट माइनस p2 हैट से डिनोट करेंगे, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p1 हैट माइनस p2 हैट।
Now, properties of sampling distribution of difference of means, difference of proportions. First case is with replacement. Mu p1 hat minus p2 hat, it is equal to p1 minus p2, and sigma square p1 hat minus p2 hat is equal to p1 q1 divided by n1 plus p2 q2 divided by n2, and standard error of p1 hat minus p2 hat, it is equal to sigma p1 hat minus p2 hat is equal to under root p1 q1 divided by n1 plus p2 q2 divided by n2. The second property of sampling distribution of difference of proportion when sampling is without replacement. Mu p1 hat minus p2 hat, it is equal to p1 minus p2. आपने देखा कि विद रिप्लेसमेंट केस में भी ये इसी के इक्वल है और विदाउट रिप्लेसमेंट केस में भी इसी के इक्वल है, यानी मीन जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के मीन का जो डिफरेंस है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस के इक्वल ही होगा, चाहे केस विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो सिग्मा स्क्वेयर पी वन हैट माइनस पी टू हैट, इट इज इक्वल टू पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई एन वन इंटू एन वन माइनस एन वन ओवर एन वन माइनस वन प्लस पी टू क्यू टू डिवाइडेड बाई एन टू इंटू एन टू माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू माइनस वन. ठीक है, इसमें क्या है एन वन माइनस एन वन ओवर एन वन माइनस वन और एन टू माइनस एन टू ओवर एन टू माइनस वन जो है ये क्या है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ये मल्टीप्लाई होते हैं इसके साथ. ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी वन हैट माइनस पी टू हैट ये इक्वल हो जाएगा सिग्मा पी वन हैट माइनस पी टू हैट इज इक्वल टू अंडर रूट पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई एन वन इंटू एन वन माइनस एन वन डिवाइडेड बाई एन वन माइनस वन प्लस पी टू क्यू टू डिवाइडेड बाई एन टू इंटू एन टू माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन टू माइनस वन. ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट इसका, यानी वेरिएंस का जब अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको कहते हैं. If the population proportions P1 and P2 are unknown, then for large sample sizes they are replaced with the respective sample proportions P1 hat and P2 hat. ये एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं गिवन, तो ये मैंने मुनासिब समझा कि आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरह से करा दिया जाए विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट रिप्लेसमेंट भी डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए. एक्सरसाइज में भी चूंकि क्वेश्चन कोई नहीं दिया हुआ और इसमें भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन से आप अच्छी तरह इसको समझ लेंगे. अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसका है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी 22 आर स्मोकर्स. In another random sample of 140 students from Punjab University, 28 are smokers. Find the mean and standard error of the sampling distribution of the difference between the two sample proportions. और B part इसका है, given n1 is equal to 3, n2 is equal to 3, p1 is equal to 1 by 2, p2 is equal to 1 by 3, small n1 is equal to 2 and n2 is equal to 2. Find expected value of p1 hat minus p2 hat and standard error of p1 hat minus p2 hat when sampling is done without replacement. A part में sampling with replacement है और B part में sampling without replacement केस है. इसमें आपको जस्ट वैल्यूज दी हुई हैं, आपने सैंपल्स वगैरह कुछ नहीं बनाने, आपने जस्ट वैल्यूज गिवन है, आपने वेरिफिकेशन उसमें करनी. अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी वन हैट माइनस पी टू हैट का क्या मतलब है, ये म्यू पी वन हैट माइनस पी टू हैट के इक्वल होता है, कि क्योंकि मीन है ना, एक्सपेक्टेशन भी ये भी मीन को शो कर रहा है, तो म्यू पी वन हैट माइनस पी टू हैट लिखें या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी वन हैट माइनस पी टू हैट लिखें, एक ही बात है.
ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखें आप पार्ट ए का। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, P1 हमने फाइंड करना है, जो कि इक्वल है x1 डिवाइडेड बाय n1 के। ठीक है, x1 डिवाइडेड बाय n1 के। n1 आपके पास है 100 और x1 उसमें स्मोकर्स जो हैं वो कितने हैं 22। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 100। अब दूसरा जो रैंडम सैंपल है वो है, उसमें कितना है n जो है वो 140 स्टूडेंट्स हैं और उसमें स्मोकर्स कितने हैं 28 हैं। तो P2 हैट जो है ये x इज इक्वल टू हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाय n2 के, और ये इक्वल होगा 28 डिवाइडेड बाय 140 और ये आ जाएगा 0.20। फिर इससे P1 से हम Q1 फाइंड कर लेंगे और P2 से हम Q2 फाइंड कर लेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे, Q1 इक्वल होगा 1 माइनस P1 के और Q2 हैट इक्वल होगा 1 माइनस P2 हैट के। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे। अब हमने म्यू P1 हैट माइनस P2 हैट हमें पता है किसके इक्वल होता है, P1 हैट माइनस P2 हैट के, और P1 हैट यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.22 माइनस P2 हैट हमारे पास है 0.20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट क्या होगा, सिग्मा P1 हैट माइनस P2 हैट इज इक्वल टू अंडर रूट P1 हैट Q1 हैट डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 हैट Q2 हैट डिवाइडेड बाय N2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा इसके 0.0535 के। अब इसका बी पार्ट भी इसी तरह से हमने देखना है, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 15.16 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 without replacement from the population 2, 3, 4, 5, 6, 8. Find the proportion of even numbers in the sample. Construct sampling distribution of sample proportions and verify that mu p is equal to p, sigma square p is equal to variance of p, and it is equal to pq over n into n minus n over n minus 1, where q is equal to 1 minus p. P and p are the population and sample proportions respectively. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें उसी तरह से सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन आपने बनानी है। तो सबसे पहले आपने P फाइंड करना होगा, फिर Q फाइंड करें। ठीक है, P आपका क्या होगा, इसमें 4 इवन नंबर्स का आपने लेना है। इवन नंबर कितने हैं इसमें 2, 4, 6, 8 4 हैं, और टोटल आपके पास 6 हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 6 जो है ये आपके पास P आ जाएगा 2/3, और Q जो है वो इक्वल टू 1 माइनस P होता है, तो Q आपके पास 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका नंबर ऑफ सैंपल्स, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट केस है और नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करने हैं, और इसका फार्मूला होता है NCN। तो ये 6C3 हो जाएगा। 20 सैंपल्स आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट केस में आपने बनाने हैं। आपने इस तरह विदाउट रिप्लेसमेंट केस के सैंपल साइज 3 के आपने सैंपल बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 8, अब फिर 2, 4, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 8। ठीक है, फिर 2, 5, 6, 2, 5, 8, फिर 2, 6, 8। फिर आपने 3 के साथ बनाने हैं 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 4, 8। फिर आपने 3, 5, 6, 3, 5, 8। ठीक है, फिर आपने 3, 6, 8 भी बनाना है लास्ट। फिर 4 के साथ बनाएंगे 4, 5, 6, 4, 5, 8, फिर 4, 6, 8 लास्ट ये आपका बनेगा। प्रोपोर्शन आपने लेना है। अब फर्स्ट में देखें कितने इवन नंबर हैं, 2 हैं, और टोटल नंबर कितने हैं 3 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा P हैट आपका फर्स्ट। नेक्स्ट में 2, 3, 5 है, तो इसमें कितने हैं इवन नंबर एक ही है, तो 1/3 आ जाएगा इसका प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट में 2, 3, 6 है, तो 2 इवन नंबर है, 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसी तरह से 2, 3, 8, इसमें भी 2 इवन नंबर हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, और इस तरह से आपने
तमाम प्रोपोर्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेने हैं। फिर उसी तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन आपने लेना है, पी हैट का कॉलम, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एफ ऑफ पी हैट यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट का कॉलम आपने फाइंड करना है, पी हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी हैट का आपने म्यू पी हैट और सिग्मा स्क्वायर पी हैट फिर कैलकुलेट कर लेना है, और एंड में आपने जो है वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, इसको पीछे हमने एग्जांपल्स की हैं, उम्मीद है आपको ये अच्छा समझ आ गया होगा। The next question from your exercise is 15.17. A family has 5 children with 3 boys and 2 girls as given below. ठीक है, ये टेबल से उसमें दिया हुआ है, 3 boys हैं और 2 girls हैं। Find the proportion of boys in the population. Select all possible samples of size 3 children from this population without replacement and make sampling distribution of proportion of boys in the samples and verify that expected value of p is equal to p and standard error of p is equal to under root p into 1 minus p over n into n minus n over n minus 1, where p is the sample proportion and small p is the sample proportion and capital P is the population proportion। अब उसी तरह से फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने P फाइंड करना है। P किसके इक्वल होगा, x डिवाइडेड बाय n के। कैपिटल N आपके पास 5 है और x जो है नंबर ऑफ आपने बॉयज फाइंड करने हैं तो वो 3 है, तो P क्या आ जाएगा 3/5। Q आपके पास 1 माइनस P से 2/5 आ जाएगा। कैपिटल N 5 है और स्मॉल n 3 है। ठीक है, और पॉपुलेशन आपके पास ये है, बॉयज बॉय है, गर्ल गर्ल बॉय बॉय। ठीक है, अब नंबर ऑफ सैंपल्स आपको चाहिए। नंबर ऑफ सैंपल्स आपका विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो NC के इक्वल होगा 5C3 जो कि 10 सैंपल्स बनेंगे। अब आपने इससे सैंपल बनाने हैं BGG, साइज 3 के बनाने हैं। ठीक है, BGG, फिर BGB, BGB अगले B के साथ। ठीक है, फिर अगला G जो है उसके साथ बनेंगे BGB, BGB। ठीक है, ये बन गया। फिर अब जो है B को बीच में रखना है, BBB, तीनों बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने G के साथ बनाने हैं GGB, GGB 2 दफा आएंगे। ठीक है, फिर GBB ये आ जाएगा और फिर नेक्स्ट G जो है उसके साथ आपने बनाना है GBB। ठीक है, और इसी के प्रोपोर्शन आपने लेने हैं। बॉय का लेना है तो फर्स्ट वाले सैंपल में देखें एक बॉय है 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, बॉय का प्रोपोर्शन हमने लेना है। नेक्स्ट वाले में देखें 2 बॉयज हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 3, उससे अगले में भी 2 बॉयज हैं 2 डिवाइडेड बाय 3, उससे अगले में भी 2 बॉयज हैं 2 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से फिफ्थ सैंपल जो है उसमें भी 2 बॉयज हैं 2 डिवाइडेड बाय 3, और जो 6 सैंपल है उसमें तीनों के तीनों बॉयज हैं तो 3 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसी तरह से तमाम प्रोपोर्शन आपने फाइंड कर लेने हैं। फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बनानी है। फिर उसमें क्या होगा, पी हैट आपने लिखना है, उसमें 1/3 है, फिर उसके बाद 2/3, फिर 3/3 जो है ये वैल्यूज हैं। फिर फ्रीक्वेंसी आपने ली तो उसका टोटल जो है ये देखिए आपके पास 10 ही आ रहा है। 1/3 3 टाइम्स है, 2/3 6 टाइम्स है और 3/3 जो है वो 1 टाइम है। फिर आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करना है। फर्स्ट जो है वो 3/10, नेक्स्ट 6/10, उससे अगली जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट कॉलम म्यू पी हैट के लिए पी हैट इंटू एफ ऑफ पी हैट आपने कैलकुलेट करना है और उससे आपका म्यू पी हैट आ जाएगा, उसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, उसका सम आ रहा है 18 डिवाइडेड बाय 30। फिर पी हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी हैट आपने लेना है कॉलम, सिग्मा स्क्वायर पी हैट आपने फाइंड करना है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर पी हैट जो है ये आपके पास आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट स्क्वायर जो है और एफ ऑफ पी हैट ये आपके पास आ रहा है 36 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला भी उसमें यूज कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको दूसरा फार्मूला भी लिख के बता दिया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट स्क्वायर इसके इक्वल है समेशन है पी हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी हैट के, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट ये म्यू पी हैट के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से लिखें या उस तरह से लिखें एक ही बात है।
ठीक है। अब इसमें समेशन पी हैट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ पी हैट हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 आया है, और म्यू पी हैट जो है माइनस म्यू पी हैट स्क्वायर 3/5 है, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर पी हैट जो है ये इक्वल आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 25 के। अब चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो सिग्मा पी हैट जो है ये इक्वल है अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। ये हमने वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। तो ये आ गया किसके इक्वल, इसमें देखें अंडर रूट 1/25 के इक्वल आया है सिग्मा स्क्वेयर पी है, सिग्मा पी हैट जो है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 25 के इक्वल आ रहा है, दोनों 1/5 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने वेरीफाई कर दिया, और ऊपर आपने देखा कि हमारे पास जो म्यू पी हैट है वो 3/5 है, जबकि पी जो हमारा था ऊपर देखिए हमने वो कैलकुलेट किया था x ओवर n, वो भी 3/5 है। तो म्यू पी हैट भी हमारा इक्वल है p के, ठीक है। हमने इसको वेरीफाई कर दिया। स्टूडेंट्स, दिस इज योर टुडेज होम टास्क। क्वेश्चन नंबर 15.8, 18, 15.19 part B, 15.20 part A, 15.24, 15.25. Solve these all the problems and send in your subject group.